You remember the concepts of statistics from class 9th? Not all the concepts, but at least what is a grouped frequency distribution table, class intervals, upper limit, lower limit, class mark, class width, mean. You remember mean? Mean is the average, sum of all observation upon total number of observations. बस उसी से हमें आगे बढ़ना है. So our first topic is mean. ठीक है. So mean what we used to find in class 9th had a formula like this: sum of sigma xi upon n. N is the total number of observations, but this is for raw data. You know what is raw data? Raw data is just numbers given to you. So you used to convert in class 9th from raw data to arrayed data, and arrayed data is raw data arranged in ascending or descending order, right? Then you used to take all the observation, add them, divide them by number of observation to find mean. For median, you used to find whether total number of observations are odd or even, and then according to that you used to apply the formula. For mode, the formula was simple. The number of observation repeated the maximum number of times was the mode. The observation repeated maximum number of times, but that is again raw data I'm talking about. Here when I talk about statistics in class 10th, we are more concerned about tabulated data. So you should know very well that tabulated data is of two types. One is ungrouped and second is grouped. So in ungrouped tabulated data, you have got your observations, which is xi. Xi are the observations. Fi is the frequency for each observation. So these two are the major things you require for ungrouped data. And using this ungrouped data or using this form of ungrouped data or tabulated data, you can find the mean. इसमें भी हम mean ढूंढ सकते हैं. But I'm not going to talk about ungrouped data much. We are directly going to jump on to the group data. But before that, I need to explain you how to find mean using ungrouped data. So I'll give you the direct method. Direct method is the first method to find mean. Okay? So in ungrouped data, what do we have is, we have xi, that is the observation, fi, that is the frequency, and then we have fi xi, the product of frequency and the respective observation. ठीक है, ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है तुमको. जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है उसे ये पूरा टेबल तुम्हें कंप्लीट करना है. एंड इन द एंड you have to write sigma fi. Sigma means summation, sum of all the fi frequencies, and sigma fi xi, sum of all fi xi's. And mean or x bar will be sigma fi xi upon sigma fi. ये तुम्हें मीन दे देगा. तो ये मेथड का नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड. This is direct method for ungrouped data. Just a moment. ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है अनग्रुप डेटा के लिए. बट देन देर इज ग्रुप डेटा विच वी आर कंसर्न विथ मोर. अनग्रुप डेटा तो जिसमें क्लास इंटरवल्स नहीं होते. ठीक है, तो अनग्रुप डेटा इजी है. बट व्हाट वी हैव इज ग्रुप डेटा. तो ग्रुप डेटा से हमें डील करना है. एंड इन दिस वी हैव गॉट 3 मेथड्स टू फाइंड मीन. द फर्स्ट मेथड is direct method. ठीक है, मैं सारी मेथड्स पहले ही डिस्कस कर लूंगा. डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है?
हमें क्लास इंटरवल्स दिए रहेंगे. We have to first make sure that class intervals are of continuous type or exclusive type. You remember continuous and discontinuous class intervals, exclusive and inclusive class intervals. In continuous or exclusive type of class intervals, the upper limit of a class is equal to the lower limit of its preceding class. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. That is exclusive or continuous type of class intervals. ठीक है, तो हमें पहले मेक श्योर करना है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है. इफ द क्लास इंटरवल्स आर नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म, यू हैव टू ब्रिंग इट इन कंटिन्यूअस फॉर्म. और उसकी भी एक टेक्निक है, याद है? एक्चुअली तुम्हें लेना है लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइड बाय 2. तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर. वो एडजस्टमेंट, जैसे सपोज मेरे पास है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40. दिस इज इंक्लूसिव टाइप और डिसकंटिन्यूअस टाइप क्लास इंटरवल. इससे तो मैं मीन नहीं निकाल सकता. ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुमको एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड मीन विद दिस. यू कांट, इससे मीन नहीं निकाल सकते. तो इसको पहले कन्वर्ट करो. कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट फैक्टर ढूंढो. लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. 11 minus 10 divide by 2, that is 1 by 2, that is 0.5. जनरली एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 ही आता है जनरली, बट ढूंढ लेना अच्छा है. once you get the adjustment factor, you have to add the adjustment factor to all the upper limits and subtract the adjustment factor from all the lower limits. So your new class intervals become 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, and so on. Now you see there is a continuation here between the upper limit and the lower limit of the preceding class, succeeding class. नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और गैप हो जाएगा दोनों में. अपर लिमिट में ऐड और लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है, वही रूल है, यही रूल है, ये रूल मेंटेन करना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर inclusive type to exclusive type or discontinuous to continuous type first, and then you look ahead. ठीक है, ये 9th का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करवाया. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट इवन आई एम गोइंग टू pay attention on when I'm coming across any questions. What I'm going to pay attention on is the technique to find the mean, and there are 3 techniques. First is the direct method. So मैंने डायरेक्ट मेथड में क्या बोला, तुम्हें क्लास इंटरवल्स दिए होंगे. क्लास इंटरवल से यू हैव टू फाइंड एक्स आई, एंड एक्स आई ओवर हियर इज नोन एज क्लास मार्क. व्हाट इज क्लास मार्क? So suppose if you have 0 to 10 class interval, what is the class mark? 5. 0 plus 10 divided by 2. Suppose you have 10 to 20, then class mark will be 15. सही है ना? What is the class width here? Here. So what I'm doing, I'm finding one class mark and I'm adding the class width to it. So what will be the next class mark? And the next one? Yeah, 35, I'm sorry. 35, yeah. So this is how you find all your class marks. So after class intervals, you need your class mark. ठीक है, ये हो गया सेकेंड वाला कॉलम. You have to remember the number of columns. Then you have to mention your frequency, जो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी. Then you have to make 4th column for fi xi, the product of frequency and class mark respective classes. ठीक है, ये टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा. Then the same thing, sigma fi xi and sigma fi, and मीन का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, x bar is equal to sigma fi xi अपॉन सिग्मा fi. अच्छा मुझे बताओ, ये डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डेटा एंड द डायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप डेटा, उसमें फर्क क्या है? क्लास इंटरवल.
तो मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अनग्रुप डेटा अगर मैं तुम्हें नहीं भी समझाऊंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज अनग्रुप डेटा में एक चीज कम होती है, दैट इज क्लास इंटरवल. यू डायरेक्टली हैव गॉट द observations. Here you have to find the class mark, which is your xi, and then apply the formula. So that was your first technique, direct method. इसमें कोई doubt है? What I want right now for all of you to make this layout and keep. Technique number 1, direct method for finding mean. उसका table बना के mean का formula लिख के छोड़ दो. Online, are you guys able to see the screen and hear me clearly? Yes, sir. Okay. ठीक है. So that's your direct method. इसके बाद नेक्स्ट मेथड है सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2, which is known as शॉर्टकट मेथड. आई डोंट नो तुम्हारी बुक में उसको क्या बोलता है, तुम्हारी बुक में इसका क्या नाम है? थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड. थर्ड मेथड है वो. सेकंड का कोई नाम है क्या पर्टिकुलर एनसीईआरटी में? क्योंकि उसको दूसरी बुक में शॉर्टकट मेथड का नाम दिया है. सो वॉट एवर नेम इज इन योर बुक वी कैन राइट दैट ऑल्सो. नहीं है? Oh yes, absolutely. Shortcut method or assumed mean method. ये देख लो क्या है. आर यू श्योर स्टेप डेविएशन नहीं है? ओके कूल. सो वी कैन फोकस ऑन दिस देन, बिकॉज इसमें और स्टेप डेविएशन में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में डेविएशन तो निकालने ही पड़ेंगे. ठीक है. तो ये सेकंड मेथड कैसी है देखो. सबसे पहले यू विल बी गिवन क्लास इंटरवल्स, और क्लास इंटरवल लिखते ही हम क्या निकाल लेंगे? क्लास मार्क. उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो सेकंड कॉलम इज ऑफ क्लास मार्क. पहले वाले में कितनी कॉलम बनी थी? 4. इसमें 5 बनेगी. ये याद रखना. नंबर ऑफ कॉलम एक बढ़ जाएगी. उसमें क्या था पता है? द फॉर्मूला इज वेरी स्वीट, शॉर्ट, सिंपल. डायरेक्ट डालो वैल्यू निकलती, लेकिन कैलकुलेशंस बड़े हो जाते हैं. इसमें मेथड थोड़ी बड़ी है, फॉर्मूला भी बड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन छोटे हो जाते हैं. सो फॉर बिगर नंबर्स assume mean method or shortcut method is beneficial. For much more bigger numbers, step deviation is always useful. तो मतलब जितनी मेथड लंबी उतना कैलकुलेशन छोटा. 4 कॉलम 5 कॉलम, उसमें 6 कॉलम आ जाती है. ये फर्क, और कुछ नहीं, बहुत इजी है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, क्लास इंटरवल. सी आई ना, बार बार वही आता है माइंड में. क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, and the third one will be your frequency, and then you will have this di or deviation. Deviation क्या होता है? Deviation is xi minus a. So what is this a? So suppose you have got this class intervals of 0 to 10, 10 to, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ समझ लो इसको. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ठीक है. और यहाँ पे क्लास मार्क्स आ जाएगी तुम्हारी 5, 15, 25, 35, 45. ठीक है.
तो ये ए क्या है, ये अज्यूम्ड मीन है। ए का मतलब क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन क्या है, ये इनमें से कोई मिडल वाली वैल्यू है। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फाइंड एंड आइडेंटिफाई एंड यूज अ मिडल वैल्यू आउट ऑफ ऑल द एक्साइज। एक्साई मतलब तुम्हारा क्लास मार्क। तो द मिडल मोस्ट इज दिस 25। डोंट यू थिंक सो कि 25 सबसे मिडल में है? तो उसको हम लोग अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो कोई भी एक चलेगा। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल मैंने बनाया है 5, तो थर्ड वाला इज सपोज टू बी द मिडल वन, राइट? बट अगर क्लास इंटरवल होते 6 या कोई भी इवन नंबर होता, तो मिडल में 2 वैल्यूज होती है, तो दोनों में से किसी को भी तुम अज्यूम कर सकते हो, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड। गलत होगा, बिकॉज यू नो ये जो चैप्टर है तुम्हारे बुक में, इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, बट ये टॉपिक का एक्चुअल नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, mean, median, these all values are you can say the middlemost values in any data. इसके लिए तुम्हें मिडल से एज्यूम मीन निकालना है, क्योंकि मिडल में इसकी टेंडेंसी होती है रहने की। ठीक है, सो मिडल मोस्ट वैल्यू हियर इज 25, सो 25 we can assume it as assumed mean. 25 is equal to a. ठीक है, ये हो गया assumed mean. Cool. अब क्या होगा? Now we will subtract this a assumed mean from all the xi, मतलब observation class marks. So 5 minus 25 कितना आएगा? 15 minus 25, 25 minus 25, 35 minus 25 and 45 minus 25 कितना आएगा? 20. And now next column will be FIDI, the fifth one. 1 2 3 4 5, fifth one. FIDI, फ्रीक्वेंसी को अब DI के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड DI इज दिस। सो फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिलेगी यहाँ पे, कुछ माइनस में होगी, कुछ प्लस में होगी। ठीक है, उसका सम आएगा छोटा सा, क्योंकि माइनस प्लस छोटा नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? सिग्मा FIDI, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा? सिग्मा FI। ये दोनों का काम है हमें आगे फॉर्मूला में। कितनी कॉलम हो गई? 5। सो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन, बस हो गया, a ऐड कर दिया मैं अज्यूम मीन इसमें, बस और कुछ नहीं। सिर्फ ये लेआउट बना दो, नंबर कुछ मत डालना अंदर। In mean, all you have to remember is the layout. Once you know the table, how many columns, and you know which method you have to use, it's very easy. And the formula, of course. Cool. लिख लिया इतना? चलो अब ट्राई करें, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। हाँ, बिकॉज वी नो द मेथड, फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, एंड आई एम ग्लैड दैट यू रिमेंबर certain basic things from your previous classes. थोड़ा चैलेंजिंग वाला ही लेते हैं, ये वाला लेते हैं। The mean of following distribution is 18. Find the frequency f of the class 19 to 21. मीन दिया है ऑलरेडी, लिख के रखो। मीन इज इक्वल टू 18, मीन इज इक्वल टू 18, एंड दिस इज योर टेबल। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछते हैं हम लोग? वेदर द क्लास इंटरवल्स आर
एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, दीज आर एक्सक्लूसिव, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना। हमें क्या ढूंढना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ ढूंढनी है, मीन ऑलरेडी पता है। अब हाँ, तो इसमें अगर तुम देखोगे हाउ टू जज वेदर विल यूज विच मेथड, तो द नंबर्स आर स्मॉल, क्लास इंटरवल्स में तुम अगर नंबर देखोगे तो 2 डिजिट है सारे, फ्रीक्वेंसी में तो मैक्सिमम एक फ्रीक्वेंसी 2 डिजिट है, बाकी सारे सिंगल डिजिट है। तो इसमें शॉर्टकट मेथड यूज कर, आई एम सॉरी, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, है ना। मेक द अप्रोप्रिएट टेबल, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई एक्स आई, एंड पुट इट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला में मीन की जगह 18 ले लो, डायरेक्टली एफ मिल जाएगा। कम ऑन, बी क्विक।
करूंगा इसका। ओके, लेट्स चेक द टेबल फर्स्ट। टेबल सही है, चेक कर लो। सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी चेक कर लो। 9.5 करेक्ट आंसर है। पहले आप टेबल चेक करो अपना। यहाँ पे चेक करो 18 एंड 13। 18 13 से 234 है। आर यू श्योर? करेक्ट 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 करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट। तो मतलब यहाँ पे 703 बढ़ जाएगा ना, 704 आएगा। तुम्हारा 704 है। ओके, फाइनल आंसर 8 आ रहा है। श्योर? तो हमें यहाँ पे एक मिस्टेक मिली है, मैं यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज 234 एंड दिस इज 8, दिस इज 704। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे देखो, find the missing frequencies f1 and f2 in the table given below. It is given that the mean of the given frequency distribution is 50. जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे, विल नॉट यूज अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो ये भी तुम्हें करना है। इसमें क्लास इंटरवल्स, इसके बाद होगा क्लास मार्क विच इज 10 30 50 70 90। उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी विच इज 17 f1 32 f2 एंड 19। ठीक है, इसके बाद होगा एफ आई एक्स आई 170 30 f1 32 5 जा कितना होता है 160 160 32 1600 32 into 50 then 70 f2 and then 19 9 जा 19 9 जा कितना होता है 171 1710। ठीक है, सो यहां से सिग्मा एफ आई एक्स आई ढूंढ लो। F1 और F2 के टर्म्स में होगा वो, यहां से सिग्मा एफ आई ढूंढ लो। नहीं, बट फिर भी ढूंढ लो F1 और F2 के टर्म्स में, बताता हूँ क्यों काम आएगा वो। मुझे बताओ ये दोनों मिलेगा तो।
This is 17, F1 32, F2 19. Yes, 68 प्लस F1 प्लस F2, लेकिन सिग्मा Fi तो हमें ऑलरेडी पता है 120. नाउ हियर यू हैव टू पे अटेंशन. ये कैसे पता है? इन द टेबल, इन द क्वेश्चन, इन द एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दे हैव गिवन 120. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा Fi is given to you. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120 इज इक्वल टू 68 प्लस F1 प्लस F2. सो देयरफॉर F1 प्लस F2 is equal to 120 minus 68, which is 52. What you are finding now? Sigma Fi Xi are you finding? 3480 plus 30 F1 plus 70 F2. Are you sure? Please confirm someone. 3480 plus 30 F1 plus 70 F2. सही है. अच्छा, now सी यू कैन डू मच विद इट. इससे साथ कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि सिग्मा Fi Xi का कोई रिलेशन डायरेक्टली मीन के फॉर्मूला में बनेगा. तो इसको ना कुछ मत करो, ऐसे ही छोड़ दो. अब डायरेक्टली मीन का फॉर्मूला लिखो. व्हाट इज मीन? मीन इज इक्वल टू सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi. मीन कितना दिया है तुमको? 50 करेक्ट. तो यहां पे लिखो 50 इज इक्वल टू सिग्मा Fi Xi अभी आया ना तुमको 3 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 द होल अपॉन. ये सिग्मा Fi तो पता है अपने को 120, उसको वो साइड लेके जाओ तो कितना आएगा? 6000 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2. 3480 को ये साइड लेके माइनस कर दो 6000 से, कितना आएगा? 2520. श्योर. अच्छा, अभी एक काम करना, दोनों साइड से 10 को डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर 30 है, 70 है, 2520 है, तो जीरो सारे कट जाएंगे. 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252. और इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2. डू यू रिमेंबर दैट यू ऑलरेडी हैव इक्वेशन नंबर 1 रेडी? F1 plus F2 is equal to 52. So this is your equation number 2. Now what you have to do? You have to solve both these equations simultaneously. Linear equation in two variables. Solve them and get F1 and F2. Come on. Solve them to get F1 and F2.
You got it? F1, F2 both? Alright, let's check. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है F1 F2 ढूंढने वाला. ये आता ही है, ये डायरेक्ट मीन पे बेस्ड है. चलो लेट्स सी. 28 24 इज इट? कूल. ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है. लेट्स टेक अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट सो इजी. नॉट सो इजी. एक ही क्वेश्चन है. ठीक है, उसमें देखते हैं. स्टेप डेविएशन में देखते हैं कि अज्यूम. ये तो बहुत ही बड़े. यस. Why not this one? What is this? This is a cumulative frequency distribution table. You remember cumulative frequency distribution? हाँ, मीडियन में यूज होता है ना. लेकिन दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज टू रिप्रेजेंट डेटा. तो ऐसा टेबल मीन ढूंढने के लिए भी दे सकते हैं वो लोग, जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस. सो इसको पहले तुम्हें यूजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैसे करना है देखो. देखो यहां पे दिस इज नोन एज लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लेस देन टाइप क्योंकि यहां पे सब लेस देन. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड. अब लेस देन 10, सबसे कम मार्क्स कितने होते हैं? 0. तो मतलब लेस देन 10 मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी फ्रॉम 0 to 10. दिस इज योर क्लास इंटरवल्स. ठीक है. एंड मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 10 और 0 to 10 कितने हैं? 14. तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है. सो दैट्स योर फर्स्ट वन, फर्स्ट क्लास इंटरवल. देन मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20. हाँ, अभी इसमें क्या होगा? लेस देन 20 में तो 0 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा. मतलब इफ यू वांट टू गेट इट्स इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, व्हाट वी डू इज वी राइट 22 minus 14. We write 22 minus 14 which is 8. 8 और हाँ 8. ठीक है. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 to 20 और यहाँ पे लिखेंगे 8. ठीक है. Then we'll write less than 30 which is 20 to 30. So here we are getting 37. So हम लोग 37 में से 14 को गिनेंगे नहीं, डायरेक्टली अब 22 को ही माइनस कर देंगे. So how much will get? 15. Like that you have to complete this table. So you get class intervals and frequency and use assumed mean method this time to find the mean after completing this table. मतलब वो डेविएशन वाला 5 कॉलम वाला बनेगा ये. कोई भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर नंबर बड़े हैं और कैलकुलेशन ज्यादा है तो यूज अज्यूम्ड मीन. इट इज बेनिफिशियल. ऑल्दो इट्स लिटिल लेंदी बट कैलकुलेशन ईजी है उसका. पहले कंप्लीट द टेबल.
Can you check your frequencies here? Correct, na? Now there is no issue. You can go ahead. $28.6. Okay. Upasana, did you get it? Okay, so they have also used, no, they have used the step deviation method, and 28.6 is their answer. Correct. So that means you use any method, step deviation, assumed mean, or shortcut, or direct. You should get the same answer. Avoided इस साल के लिए, हाँ, because it's not there ना, हाँ, but still you get the same answer. So don't use it, of course. Okay. Mode.
एक्चुअली पहले मीडियन आना चाहिए फिर मोड, लेकिन पहले ये लोग मोड बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो मोड फॉर रॉ डेटा आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू दैट इट इज द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है किसी भी डेटा में, उसको मोड बोलते हैं हम लोग। तो मोड का एक फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा। यू मस्ट write this formula. Let me just maximize this thing. Yeah. ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में mode is the value of the variate which occurs very often, and modal class is the frequency distribution of the class that has maximum frequency. क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको मोडल क्लास बोलते हैं। मोडल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड इज दिस: एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 टाइम्स h। और इसमें तुम्हें याद रखना है कि स्मॉल l इज द लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास, small l lower limit of modal class, h is the size of modal class size of modal class, f1 is frequency of modal class, f0 is the frequency of a class preceding the modal class, f naught भी बोल सकते हैं, and f2 is the frequency of the class succeeding the modal class। मतलब मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी f0, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 एंड मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी f2। कॉफी कल जैसा, हाँ ठीक है। सो दैट विल गिव यू द मोड। सो इट इज फॉर्मूला बेस्ड, कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आंसर निकालना। फॉर्मूला लिख लो, उसके मीनिंग लिख लो सारे टर्म्स के, एंड देन विल गो टू वन क्वेश्चन। ओके, लेट्स टेक दिस वन देन, दिस सिंपल वन। ठीक है, इसमें कोई क्लास मार्क ढूंढने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्लास विड्थ कितनी होगी ये बता दो। 5 एच पता चल गया। मॉडल क्लास कौन सा होगा ये बता दो। 35 टू 40, राइट। तो तुम्हें f1 की वैल्यू पता है, f0 6 होगा, f2 8 होगा, राइट। और h भी पता है तुम्हें। l क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल 35। या कम ऑन, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर।
If you get the answer, let me know. सही है। क्यों सही है पता है? तुम्हारा जो आंसर है वो मॉडल क्लास में बिलोंग करता है, मीन्स इट्स बिटवीन 35 एंड 40। 37 पॉइंट, लेट्स चेक, सारे वैल्यूज करेक्ट है, बिल्कुल सही। सो दिस इज प्लेन फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक। देखते हैं और क्या है। हाँ, अब तुम्हें मोड दिया है, यू टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। यू बीन गिवन द मोड, यू टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ट्राई। हाँ मतलब 50 to 60, यस करेक्ट। मोड अगर 57.5 है, मॉडल क्लास शुड बी 50 to 60। यस, दैट यू हैव टू मेक द गेस, सो दैट उस पे तुम्हारा एल, तुम्हारा F0, F1, F2 सब डिपेंड करेगा। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड F2। F2 ढूंढना है तुमको, है ना? यस, कम ऑन। वन फोर। Let's check. Yes, model class is 50 to 60 and X is 14. Yeah, you are right. क्या हो गया? कुछ गलती हुई है? It's okay. You'll find it. I'll go ahead, okay? तो यहाँ पे बोला है कंपेयर द मॉडल एजेस। आई डोंट वांट टू सॉल्व दिस, जस्ट अ मोमेंट। मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स डिस्कस दिस। कंपेयर द मॉडल एजेस ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम। तो एज, ये ग्रुप 1, ग्रुप ए, ग्रुप बी ऐसे दिया है, ये से शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो कंपेयर करने बोला है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 18 to 20, और यहाँ पे 18 to 20, मतलब दोनों में मॉडल क्लास सेम है, शायद मोड की वैल्यू थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो, बिटवीन 18 to 20। तो हाउ दे हैव कंपेयर्ड, they have taken out mode for group A and then for group B, and it is slightly, there is some difference, 18.93 and 18.83, 0.10 का difference है। So modal age of student of group A is this,
and group B is this, so modal age of group A is greater than modal age of group B. ऐसे ही कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर जब पूछते हैं तो समटाइम्स दे एक्सपेक्ट अस टू गेट द रेशियो, बट ऐसा नहीं है इसमें, इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन है, नहीं होता है जनरली, इसलिए वी शुड कम अक्रॉस सर्टेन क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस बिफोर हैंड। तो अच्छा हुआ हमने ये क्वेश्चन देखा, हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे रेशियो नहीं ढूंढना था, तो आगे भी तुम्हें ये याद रखना है। रेशियो वाले कंपेयर वाले क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम में ज्यादा होते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में ज्यादा होते हैं। ओके, मीडियन तो हमारा सिर्फ एक ही बचेगा, ओजाइव ग्राफ वाला, नेक्स्ट क्लास के लिए। ओजाइव नहीं है, यू डोंट हैव ओजाइव, so we are done with the chapter today. That means cool. What I want you to do first for median, we have to do raw data. तो एक बार ये लिख लो जरा, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज और रॉ डेटा, फॉर्मूला लिखो, राइट द फॉर्मूला।
ये लिखा फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ना, दैट इज मीडियन फॉर रॉ डेटा। अब यहां पे दिस इज नॉट रॉ डेटा, दिस इज टेबुलेटेड डेटा। हाँ वही ओजाइव, उसको ही ओजाइव बोलते हैं। तो ये ओजाइव नहीं है, दिस इज जस्ट मीडियन यूजिंग फॉर्मूला। You have two ways of finding median in your course, that is one with formula and one without formula or graph. So you don't have graph, so we'll do formula. We'll finish this today itself. Khatam ho jayega chapter. I was not expecting that. Anyways, so see, yahan pe this is not raw data, this is tabulated data, and here we have to find the median. ठीक है, बट फॉर दैट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लेस देन टाइप। तो इस टेबल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों में से किसी एक से आ सकता है। तो मोर देन टाइप से हम निकाल सकते हैं मीडियन। अच्छा, मोर देन टाइप को तुम्हें अगर कन्वर्ट करना है नॉर्मल वाले में तो कर सकते हैं, वो मेथड वैसा ही रहेगा। अगर कोई एग्जांपल रहेगा तो आई विल शो यू, आई विल डू इट एंड शो यू। बट फॉर दिस लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट डू दे मीन। पहले मार्क्स ऑब्टेन 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25। अलग अलग मार्क्स है और अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, सो मैं यहां पे लिखता हूं मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहां पे लिखता हूं लेस देन, और यहां पे मैं लिखता हूं फ्रीक्वेंसी, और यहां पे मैं लिखता हूं, नहीं लेस देन कैसे आएगा, डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। एक मिनट, इसको ना पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमें। मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर लेस देन टाइप, क्लास इंटरवल्स एंड लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। 20 सबसे छोटा नंबर है, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6। एक मिनट, तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी आएगा। लेट मी जस्ट गिव इट अ लिटिल स्पेस ओवर हियर। ठीक है, तो मेरे को बताओ 20 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 6। 20 के बाद वाला नंबर कौन सा है, आर यू श्योर?
ओके 25 का फ्रीक्वेंसी कितना है? फिर 28 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 24। फिर फ्रीक्वेंसी, फिर 33 फ्रीक्वेंसी, 33 के बाद डायरेक्टली 38, कोई नहीं है बीच में, 38 का फ्रीक्वेंसी, फिर डायरेक्टली 42। ओके फ्रीक्वेंसी 42 का 2 और 43 का 1। बहुत वियर्ड है यार। 50 स्टूडेंट्स, मार्क्स आउट ऑफ 50 बाय 100 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, मतलब हाँ ये सिग्मा एफ आई दिया हुआ है। ओके इसमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यार शायद, we won't require it because this is individual marks got by certain number of students, ऐसा दिया है। मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 100 विच इज इवन। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इवन है। और जब एन इवन होता है तो मीडियन क्या होता है पता है? मीडियन इज इक्वल टू एन बाय टूएथ टर्म, n by 2th term प्लस n by 2 प्लस 1th टर्म। n by 2 नहीं है, ठीक है, n by 2th टर्म है और n by 2 प्लस 1th टर्म है डिवाइडेड बाय 2। अच्छा तो मुझे बताओ n by 2 मतलब 100 by 2 मतलब 50th टर्म रहेगा ना यहाँ पे, 50th टर्म प्लस 50 प्लस 1 दैट इज 51st टर्म बाय 2। तो मुझे बताओ इस ये तुम्हारे सामने जो टेबल है उसमें 50th टर्म कहां पे आएगी? इसके लिए तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगेगी, तो यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अभी बनाता हूं, रुक जाओ, डजेंट मैटर। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। चलो अब बताओ मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 प्लस 20 26, 26 प्लस 24 50, 50 प्लस 28 78 प्लस 15 93 प्लस 4 97 99 100। करेक्ट। अब मुझे बताओ कि 50th टर्म मतलब जो 50th स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं? देखो पहले 6 स्टूडेंट के मार्क्स 20 है, 7th स्टूडेंट से 26th स्टूडेंट के मार्क्स 25 है, 27th स्टूडेंट से 50th स्टूडेंट के मार्क्स 28 है, मतलब 50th स्टूडेंट के मार्क्स कितने हुए? 28। तो यहाँ पे 50th टर्म कितनी हुई? 28 प्लस 51st से 78 स्टूडेंट के मार्क्स है, तो यहाँ पे 29 आएगा डिवाइड बाय 2। 28 प्लस 29 कितना होता है? हाँ आर यू श्योर? 57 by 2 which is 28.5। you are right। देख यहां पे मैं जैसे बोल रहा हूं उसको देख तू, पहले 6 स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, फिर 7th स्टूडेंट से 26th स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 27th स्टूडेंट से 50th स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, और 51st स्टूडेंट से 78th स्टूडेंट तक के मार्क्स कितने हैं। तो मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को मिल रहा है मीडियन इज इक्वल टू 50th टर्म प्लस 51st टर्म, 50th स्टूडेंट के मार्क्स प्लस 51st स्टूडेंट के मार्क्स डिवाइड बाय 2 दैट इज दिस। तो मीडियन हुआ 28.5। मतलब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा है, आई एम सॉरी टैबुलेटेड डेटा है, ग्रुप डेटा नहीं। ग्रुप डेटा में तो फॉर्मूला लगेगा, ये तो विदाउट फॉर्मूला हो गया, जस्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला विच यू हैड रिटर्न। तो एक बार चेक कर लें, इतनी कॉन्फिडेंस से बोल तो रहा हूं, आंसर भी सही आना चाहिए। 28.5 लेट्स चेक। या दैट्स द सेम थिंग, 28.5 सही है ना? वो लोग ने भी एक अलग टेबल बना दिया है अप टू 20 ये वाला करके सब
अलग टेबल ही बना दिया है वो लोगों ने. डू यू सी दैट? दिस इज लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 28 वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है. एंड देव गॉट द सेम नंबर्स एज वी गॉट. यू सी दैट? या, सो दैट्स हाउ यू गेट योर आंसर. समझ में आया? द ग्रुप्ड टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी टैबुलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी तुम मीडियन निकाल सकते हो, बट यूजिंग द फॉर्मूला विच यू जस्ट रोट, दैट इज द फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 9. बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यू फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. डिस्क्रीट का भी पूछ रहे हैं लोग, देखो. ठीक है, एक ये भी करते हैं फिर. Let's do this one. This is very similar to the previous one. Previous one was slightly tricky, but this is easier. यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है? What is xi fi? ये कौन से टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? अनग्रुप्ड बट टैबुलेटेड. तो हम लोग क्या लिखेंगे? xi, सॉरी, विल राइट xi, उसके बाद fi, उसके बाद cf. खत्म. 3 कॉलम तुम्हारी. ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें. 15, 3, 3. ठीक है. 21, 5, 8. उसके बाद 27, 6, 14. 30, 7, 21. आर यू गेटिंग दिस उपासना? कैसे आ रहा है? What I am doing is 3 plus 5 8, 8 plus 6 14, 14 plus 7 21. CF अलग से भी बना सकते हो, हम जैसे कर रहे हैं वैसे जरूरी नहीं है. 35, 8 and 21 plus 8 is 29. Yes. So this is your, what is this? Sigma Fi or n is equal to 29, which is odd. अगर n odd होता है तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज n plus 1/2th टर्म. कुछ लोग क्या करते हैं पता है? एक गलती करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ वो गलती क्यों नहीं करनी चाहिए और कैसे उससे बचना चाहिए. कुछ लोग लिखते हैं मीडियन इज n plus 1/2th टर्म. सिद्धि, the class is going on, you have to wait outside for 5-10 minutes. They will get over, then you can come inside. So कुछ लोग क्या कर लेते हैं? n की जगह 29 डालते हैं. 29 plus 1/2, that is 30/2, that is 15. 15 is the answer. 15 is not the answer. 15th term is the answer, and you have to figure out from here where is the 15th term. कुछ लोग 15 लिख के जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं. ये मैं बता रहा हूँ गलती जो नहीं करनी चाहिए. ये क्लास 9th में भी मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ. ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट. अच्छा, let's focus here. So median is n plus 1/2th term, which is 29 plus 1/2, that is 15th term. राइट. अब 15th टर्म ढूंढेंगे कैसे? देखो, पहली तीन टर्म तो यहां पे, ठीक है. 4th टर्म से लेके 8th टर्म यहां पे, 9th टर्म से लेके 14th टर्म यहां पे, 15th टर्म से 21st टर्म यहां पे, ये वाला ये तो मीडियन क्या आएगा? 30. मीडियन इज 30. 15th टर्म दैट इज 30. वो ढूंढना भी बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. सो यू टू फिगर आउट कि कहाँ पे है ये 15th टर्म, एंड देन यू गेट द आंसर. नॉट लाइक रॉ डेटा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो दैट्स योर मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, टैबुलेटेड डेटा, विच इज 30. ठीक है, तो ये भी सेम है, ये नहीं कर रहा हूं मैं. यस, नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट द मीडियन ओवर हियर ऑफ दिस ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा, प्लीज ये फॉर्मूला नोट करो सबसे पहले. मीडियन फॉर ग्रुप डेटा. स्टेप्स भी लिख लो सारे, जैसे उन्होंने लिखा है वैसे ही लिखना है तुम्हें. पहला स्टेप क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है सारे क्लासेस का, और n/2 ढूंढना है. n/2 इज half the sigma fi.
n/2। उसके बाद मीडियन क्लास मिल जाएगा तुम्हें जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 है। जस्ट ग्रेटर देन, एक्चुअली जस्ट लिखना जरूरी है यहाँ पे, इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, वो होगा मीडियन क्लास। So median class is class which corresponds to n/2th observation. जिस क्लास में n/2th observation होगा वही median class होगा। Then you have to use this formula to find median, which is L plus n/2 minus C upon F into H. C की जगह C F भी लिख सकते हैं। इसमें F फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, L लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का, H विड्थ है सारे क्लासेस की, N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व है। सो राइट द स्टेप्स एंड द फॉर्मूला एंड द मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व। वंस यू आर डन वी कैन डू वन क्वेश्चन। You will have to keep the steps in front of you when I discuss. पूरा डेरिवेशन है इसका स्टैटिस्टिक्स में। n/2 is n/2th ऑब्जर्वेशन है वो। yes, so you have to find the class to which n/2th observation belong, which will be your median class. इसके एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन दिखाया नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है, चेक करो ना। उसमें जनरली एनसीईआरटी में सारे डेरिवेशंस दिखाते हैं वो लोग। स्टेप डिविएशन, हाँ स्टेप डिविएशन है, नॉट स्टेप डिविएशन, देयर इज मीन डेविएशन, नॉट दिस स्टेप डेविएशन, नॉट दिस वन। इससे आगे बढ़ती है स्टोरी, बट इजी है, बहुत इजी, एंड इट्स ऑल्सो यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी। नहीं है या इट्स ओके देन। तुम्हें पता है ये सेम टॉपिक आईसीएससी को भी है और उनको फॉर्मूला है ही नहीं, उनको डायरेक्टली ओजाइव है, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व से ही मीडियन ढूंढते हैं वो लोग, they don't have the formula method. You guys have both formula as well as graph, means this year तो only formula. So easy है ना ये चैप्टर, अच्छा हो हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम पहले ही खत्म कर दिया। This is comparatively nothing, like if you remember the formula it's very scoring, easy to score chapter. So next class में we can do this tomorrow, construction will finish है ना, तो everything will be done. Good, yeah, nice. अच्छा इसके बाद कोई प्रीलिम स्कूल ने बोला है क्या? नहीं ना, तो देन वी कैन कीप ना आराम से। हाँ ना, मुझे 2 प्रीलिम रखनी है, पेपर सॉल्विंग भी रखना है। 2 तो मैं बोल रहा हूँ, जनरली वी टेक 3 4 5। हाँ तो वी कैन डू इट लाइक। हाँ ओके, तुम्हारी स्कूल वाले ना, वो स्कूल के पर्सपेक्टिव से होते हैं। जैसे इफ यू सी डीपीएस का पेपर, वो तो कुछ भी देते हैं भाई, 11th 12th की कंटेंट डालते हैं अंदर, कुछ भी, कुछ मैग्नेटिज्म में तो क्या क्या टॉर्क वॉर्क डाल दिया था उन्होंने, जो है नहीं तुमको। तो वो क्या, स्कूल क्या करती है अपने पर्सपेक्टिव से पेपर, क्योंकि उनको फ्रीडम है ना, तो वो बनाते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को अपने को आगे लाना है। डीपीएस का तो खैर बहुत ही एग्रेसिव है वो लोग। यू नो, हैव यू सीन दैट मूवी जो जीता वही सिकंदर?
हैव यू वो बाइसिकल रेस वाला आमिर खान का मूवी, दैट सो ब्लडी फेमस मूवी फ्रॉम 90s। सो उसमें एक कॉलेज होती है, मॉडर्न कॉलेज। मॉडर्न कॉलेज ऐसा चीप, मतलब बहुत ही नॉर्मल बच्चे जाते हैं उसमें, जिसमें आमिर खान होता है। और एक दूसरी कॉलेज होती है, ये क्या नाम इसका, राजपूत, राजपूत कॉलेज। तो राजपूत के कॉलेज को अलग ही स्वैग है भाई, वो लोग अलग ही घमंड में जीते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर चीज में फर्स्ट आते हैं। ठीक है, तो डीपीएस अपने नवी मुंबई का राजपूत है, अलग ही स्वैग है उनको, अलग कोई उसको किसी की नहीं फिक्र है, वो खुद का ही है और उनके बच्चों को ही एडमिशन देना है। दूसरे बच्चे आते तो उनको ऐसे देखते हैं, "हैं, कौन है ये, कौन नहीं, कल का कौन आ गया ये, हमारे साथ क्या compete करेगा ये, हम डीपीएस के राजपूत के बच्चे हैं।" तो है उनका, मैंने उनके कुछ बच्चे थे मेरे पास इस साल शायद, आई एम नॉट श्योर, लास्ट ईयर तो थे, काफी अच्छे बच्चे थे वो लोग। एनीवेज, हाँ ये भी एक फॉर्मूला लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। क्योंकि ऐसा एक, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, कि अगर मीन और मीडियन एक ऑब्जर्वेशन का ये है तो मोड क्या होगा। तो यू कैन फाइंड इट यूजिंग दिस फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। किसी एक क्वेश्चन में ऐसा भी पूछते हैं कि ये तुम्हारा डेटा है एंड यू हैव टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। तो वही हमने जो फॉर्मूला यूज किए हैं, मीन का अलग, मीडियन का अलग, मोड का अलग, लेकिन तीनों नहीं निकालना है। हाँ वही ट्रिक है, कोई दो निकालना है और तीसरा इस फॉर्मूला से निकालना है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट के लिए। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम नॉट श्योर मैम। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू मीन, ओ यस। इस केस में क्या होगा पता है, एग्जैक्ट जो सेंटर वैल्यू होगी ना, सेंटर डेटा की सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू, इट विल बी द मीन एंड मीडियन एंड मोड ऑल। तो ये तब होता है जब वो जो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सिमेट्रिकली इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पहुंच जाती है मिडल पे, और सिमेट्रिकली डिक्रीज होके मिनिमम पहुंच जाती है लास्ट पे। मतलब जितना इंक्रीज और डिक्रीज है दैट इज सिमेट्रिकल। सो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। या फिर टू, हाँ ऐसा, या फिर 2 4 6 4 2 ऐसा रहा तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी सिमेट्रिकल होगी। क्लास इंटरवल्स तो होते ही है, इक्वल क्लास विड्थ के मानने होते हैं हमको, तो उस केस में मीन, मीडियन और मोड एक ही आए। ठीक है, थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली यू कैन। ओके चलो ये वाला ट्राई करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, find the median daily wages from the following frequency distribution। तो तुम पहले क्या करोगे, you will make accumulative frequency table। ठीक है, less than type or more than type, that is the question now। so I will make both for you, तो तुम्हारा जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आई विल मेक अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यू। सो लेस देन, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, just a moment, I don't like this color in the background, you can't even see that, I can see that। so less than, सबसे पहले 150, लेस देन 150। देखो लेस देन 150 क्यों लिखा, यहाँ पे हाईएस्ट मतलब अपर लिमिट कौन है, 150, तो लेस देन 150, तो विल गेट 6 0। लेस देन 100 अगर लिखोगे तो 0 आएगा वहां पे, लिख सकते हो। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ यू हैव टू राइट लेस देन 100 बिकॉज यू बिगिन फ्रॉम 0, योर ग्राफ शुड बी beginning from x axis। मतलब ग्राफ पे नहीं, तो तुम्हें सिर्फ लेस देन 200 लिखना है। लेस देन 200 में क्या लिखेंगे, 6 + 3 9।
मैं समझा नहीं तो इसमें तो ये तुम्हें नॉर्मल। अच्छा ओ, सो यू मीन इन इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल्स है, तो उसको एक्सक्लूसिव लाना पड़ेगा कि नहीं? आई थिंक लाना पड़ेगा इसमें, बिकॉज इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का। वो मीन में आता है, वो मीन में आता है। इसमें जनरली तुम क्वेश्चन देखोगे दे आर ऑल एक्सक्लूसिव टाइप ओनली, ओनली देन यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू योर लेस देन टाइप, because that doesn't matter, it should be in less than type cumulative frequency distribution. So less than 150, less than 200, less than 250, less than 250 में क्या आएगा? ठीक है, लेस देन 300 में क्या आएगा? 34, yes. लेस देन 350 में क्या आएगा? That is your cumulative less than type cumulative frequency distribution ready. Now if somebody says नहीं मेरे को less than नहीं more than बनाना है, तो more than भी बना सकते हैं. Let me show you here. तो इधर मैं लिखूंगा more than, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें एक टेक्निक मैं देता हूं तुम्हें, दोनों में एप्लीकेबल है ये टेक्निक, मैंने डायरेक्ट किया है। यहाँ पे एफ लिखूंगा और फिर यहाँ पे मोर देन टाइप सी एफ लिखूंगा। दिस इज मोर देन टाइप सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मोर देन 100। यहाँ पे सारी लोअर लिमिट्स लिखनी है, याद रखना, यहाँ पे हमने सारी अपर लिमिट्स लिखी है। सो मोर देन 100, मोर देन 150, मोर देन 200, मोर देन 250, मोर देन 300 एंड मोर देन 350 लिख लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आएगी तुम्हारी 6, 3, 5, 20 एंड 10। यहाँ पे नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, दिस इज अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। सो मोर देन 100, अभी शुरुआत कैसे करनी है? ये जो टोटल है ना, टोटल विच इज 44, यहाँ पे लिख देना। तो टोटल कैसे करना है? पहले ऐड करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? अब इसको माइनस करना है 6 को, और यहां पे लिखना है 44 माइनस 6 कितना होता है? 44 माइनस 6 38, करेक्ट। 38 माइनस 3 35 माइनस 5 30 माइनस 20 आ गया ना 10। उल्टा से भी शुरुआत कर सकते हो, 10 प्लस 10 यहां पे लिख दिया, 10 प्लस 20 30 प्लस 5 35 प्लस 3 38 प्लस 6 44। तो ये हो गया तुम्हारा मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज एन। एन क्या है? 44। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, तुम्हारे स्टेप्स तुम्हारे सामने रखो, n बाई 2 कितना है? 22। अब तुम्हें क्या करना है, उसमें क्या बोला है? n बाई 2 कौन से क्लास इंटरवल से जस्ट ग्रेटर है या इक्वल है, वो निकालना है तुम्हें। हाँ, अभी n बाई 2 इफ यू सी in the cumulative frequency which is 22, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 to 6 यहाँ पे है, 7 to 9 यहाँ पे है, 10 to 14 यहाँ पे है, एंड 15 to 34 यहाँ पे है। मतलब तुम्हारा जो क्या बोलते हैं मीडियन क्लास है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द लेस देन टाइप, लेस देन क्यूमुलेटिव और लेस देन class interval 300, less than class interval 300 is belonging to this class interval 250 to 300, and this is your median class। मीडियन क्लास मिल गया। अगर ये मीडियन क्लास है तो हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूला में? लोअर लिमिट चाहिए इसकी, लोअर लिमिट चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए मीडियन मीडियन क्लास की, नहीं, प्रीसीडिंग की फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अच्छा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास, और क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ये है 20, और विड्थ चाहिए जो 50 है। डालो फिर फॉर्मूला एंड गेट द मीडियन, शुड बी बिटवीन 250 to 300। सॉरी,
हाँ, कैपिटल सी या फिर सी एफ, इट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके कूल. अच्छा मेरे को बताओ वेदांत, अगर मैं मोर देन टाइप टेबल लेता तो फर्क क्या पड़ता? n/2 तो तभी भी 22 आता. कौन सा क्लास लेता मैं जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 22 है? क्या है? 30. कौन सा है ये? मोर देन 250 मतलब 250 टू 300 वही होता. मतलब बात वही रहती. तुम मोर देन टाइप लो या लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, तुम्हारा आंसर वही आना चाहिए. तो तुम्हारा आंसर तुम बोल रहे हो 270 है. करेक्ट है. सही है ना? फॉर्मूला में सारी वैल्यू अगर सही डालोगे तो आंसर गलत नहीं हो सकता. एंड यू टू चूज योर क्लास प्रॉपरली. सो दिस इज हाउ दे हैव ड्रॉन इट. अच्छा, विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे हैव प्रिपेयर्ड ओवर हियर, मोर देन और लेस देन? लेस देन. लेस देन इज अ यूजुअल थिंग. ओके, जनरली लेस देन ही करते हैं. तो हम भी एक से स्टिक रहेंगे. विल ईदर डू लेस देन, ओनली लेस देन. आई थिंक इज फेयर. Okay, let me see if there is something difference. Yeah, this one is little tricky. Okay, mean median mode वाले. ठीक है. So according to me, the chapter is over. Like we have covered everything. There is one more part. I don't know what is there in this part. Oh yeah, ogive. So that's not the air care. तो ठीक है. अब ये सारे जो लेसन प्लान है विद द एक्सरसाइजेस, 3 एक्सरसाइज है, ये मैं तुम्हें भेज देता हूँ तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए. सो यू डिसाइड कौन से टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है. ठीक है, उसके हिसाब से यू कैन ट्राई. एंड टुमारो यू ब्रिंग योर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. राउंडर क्या होता है?